My dear students, in this video, we will be discussing about inferential statistics. Yes, in class 11, you have learned that the study of statistics can be categorized into two types. First is descriptive statistics, in which you studied measure of dispersion, skewness and kurtosis, percentile rank and quartile rank, correlation and so on. Now, in class 12th, we'll be discussing about inferential statistics. So what is it basically, right? So let's talk about that. Inferential statistics आपके syllabus में 5 marks की worth रखती है और ये क्या होती है ये समझना बहुत important है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आइए देखते हैं। Topics to be discussed in this chapter are, in this unit are, conceptual knowledge सबसे पहले, population and its types, sampling, its types and subtypes. तो इस वीडियो में ये तीन चीजें डिस्कस होंगी। Conceptual knowledge. What is basically inferential statistics? Inferential statistics is a branch of statistics through which inferences are drawn about the population by analyzing a sample drawn from the population. What do I mean? Sounds gibberish? Let's understand it. What do you mean by inferences? A conclusion reached on the basis of a conclusion reached on the basis of evidence and reasoning. मतलब मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है और आप अपने ब्लड का सैंपल एक टेक्नीशियन को, लैब टेक्नीशियन को देते हैं फ्रॉम सम हॉस्पिटल। वो आता है, आपके ब्लड का छोटा सा सैंपल लेता है और चला जाता है। कुछ दिन बाद आपकी रिपोर्ट्स आती हैं। वो रिपोर्ट्स आपको क्या बताएंगी? यस, आपकी बॉडी के बारे में बताएंगी, आपको क्या प्रॉब्लम है वो बताएंगी। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू एविडेंसेस, आपके ब्लड सैंपल से लिए गए आपके रिजल्ट्स आपको ये कंक्लूजन देते हैं कि आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है और उसे कैसे डॉक्टर्स ठीक कर सकते हैं। बस यही कुछ हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में करने वाले हैं। आइए आगे पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में समझते हैं। व्हाट इज पॉपुलेशन? अगर एक लेमैन लैंग्वेज में बात की जाए तो पॉपुलेशन क्या है? इससे मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। हाउएवर स्टैटिस्टिक्स में ऐसा नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन का मतलब ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी द प्रोसीजर्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स बात कर रही हूँ बिटवीन द एज 15 to 18, तो यहाँ पर मैं बच्चों की हाइट की बात कर रही हूँ, ऑब्जर्वेशंस की बात कर रही हूँ। People living in India, female thyroid patients between 30 to 40 years in Noida, amount of rainfall during August in a particular country, state in India, ये सारे examples हैं population के, जहाँ पे जरूरी नहीं कि population living thing है। हमारी observations, हमारे procedures, right? हमारा मौसम, seasons की बात करना, ये सब चीजें population का पार्ट है। पॉपुलेशन के दो टाइप्स हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन एंड इनफाइनाइट पॉपुलेशन। क्या आपको क्लास 11th में सेट्स की नॉलेज है? जी हाँ, आपने पढ़ा है। सेट्स बेसिकली क्या था? अगर आप सेट्स पढ़ रहे थे तो सेट्स में आपने दो तरह के सेट्स पढ़े थे, एक था फाइनाइट सेट और एक था इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में हम कहते हैं the number of elements present in the set are finite. For example, odd natural numbers less than equal to 10, right? ये आपका finite set का example था। On the other hand, infinite set का example था set of prime numbers, set of natural numbers, set of real numbers, set of whole numbers and so on.
In the same way, when we are talking about finite population and infinite population, we are thinking about something related to that. What is finite population? Group of objects, events, experiments, observations, and so on, which are countable. जो finite है, जिसे आप count कर सकते हो, और natural numbers less than 10 आप count कर सकते हैं, right? इसे हम countable population भी कहते हैं. तो फिर infinite population जो आप count नहीं कर सकते, जैसे मिल्की वे, आपके स्टार्स या फिर आपके सिर के बाल, राइट? अब समझते हैं सैंपल क्या है. Smaller group of members of a population selected to represent the population. जैसे मैंने आपको लैब टेक्नीशियन का एग्जांपल दिया था, आपके ब्लड का पूरा पार्ट निकालने की जगह वो आपका पूरा ब्लड निकाल ले, दैट्स नॉट पॉसिबल. तो आपके ब्लड का थोड़ा सा सैंपल टेक्नीशियन लेकर जाता है और उस पे रिसर्च करता है, सैंपल पे काम करता है और आपको बताया जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है. यही आपका सैंपल है. आई होप आई एम क्लियर. लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग. Types of sampling has two main parts. One is probability sampling and second is non-probability sampling. So let's talk about probability sampling first. इसे हम random sampling भी कहते हैं. The selection of members from the population is random, such that each member of the population has an equal chance of being selected. यही रैंडम प्रोबेबिलिटी की बात होती है जब हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्कस करते हैं, राइट? इक्वली लाइकली आउटकम्स, बस यही है रैंडम सैम्पलिंग. यहाँ पर every member of the population has equal chance of being selected. Types of probability sampling. Yes, we have few subtypes of probability sampling which are as follows. Number one, simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling and cluster sampling. आइए इन चारों के बारे में वन टू वन समझते हैं. फर्स्ट है simple random sampling. Every member of the population in this case has an equal chance of being selected. This is one of the most common method of sampling. Let's understand it with the help of an example. मान लीजिए आपके पूरे स्कूल में मुझे एवरेज हाइट निकालनी है फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12th. तो मैं क्या करूंगी? क्या मैं सबकी हाइट नापूंगी? नहीं, पर मैं एक काम कर सकती हूँ. मुझे पता है कि हर क्लास में ऑन एन एवरेज 30 स्टूडेंट्स तो होंगे ही. मैं हर क्लास से रोल नंबर 5, 6 को बुला लेती हूँ. अब एक क्लास में अगर 5 सेक्शंस हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एक क्लास से 10 स्टूडेंट्स आने वाले हैं, राइट? तो इस तरह से मेरे पास 12 क्लासेस हैं. दैट मीन्स 10 12 120 स्टूडेंट्स. तो आई विल गेट अ सैंपल ऑफ 120 स्टूडेंट्स. और यहाँ पर मैंने बिना सोचे रोल नंबर 5, रोल नंबर 6 को बुला लिया, जहां पर मैंने रैंडमली रोल नंबर 5, रोल नंबर 6 को सिलेक्ट किया. वो कोई भी हो सकते हैं, राइट? आई होप आई एम क्लियर. मूविंग ऑन टू सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. Systematic sampling is similar to simple random sampling, but is slightly easier to conduct. In this case, every member of the population is assigned a number, but instead of randomly selecting numbers, the numbers are chosen at regular intervals. For example, let's take an example to understand it better. आपके स्कूल के 3000 4000 बच्चों में से अगर मैं एक सैंपल सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं उन सबको सिलेक्ट करने की जगह मैं ये कहती हूँ कि हर क्लास के या ओवरऑल मैं सबको मान लीजिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों को लगा दिया. और उसके बाद मैंने ये कहा उनकी, अब मैंने इनको नंबर्स दे दिए
1, 2, 3, 4, 5 and so on up to 3000. ओके, अब मैंने कहा सब 7 के मल्टीपल्स जितने भी बच्चे हैं वो सब आ जाइए। तो 7 के मल्टीपल्स का क्या मतलब हुआ? 7, 14, 21, 28, राइट? तो ये सारे ही जितने भी 7 की टेबल में बच्चे के रोल नंबर्स आ रहे हैं, वो सारे बच्चे मेरे पास आ जाते हैं और मैं उन सब बच्चों को सिलेक्ट करके एक सैंपल निकाल के उस पर वर्क कर लेती हूँ। So this is what we call systematic sampling. I hope I'm clear. Now let's talk about stratified sampling. What is it? The population in this case is divided into subgroups called strata based on the relevant characteristic. For example, gender, age, income, profession, etc. The members from each subgroup are selected using simple random or systematic sampling. शायद कुछ समझ आया हो? नहीं? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं। अब मैंने 1000 स्टूडेंट्स में से मान लिया कि मेरे पास 600 गर्ल्स हैं और 400 बॉयज हैं। अब इंस्टेड कि मैं रैंडमली बच्चे सिलेक्ट करूं, मैं क्या करती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि 60 गर्ल्स आएंगी और 40 बॉयज आएंगे और मैं 100 का सैंपल निकालूंगी। अब ये 60 गर्ल्स जो हैं, ये मैं किसी भी तरीके से सिलेक्ट कर सकती हूँ। इट कुड बी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड। मैं किसी भी तरीके से मैं ये 60 और 40 सिलेक्ट करके इन्हें फाइनलाइज कर लेती हूँ। तो ये मेरा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हुआ। आई होप आई एम क्लियर। मूविंग ऑन टू क्लस्टर सैम्पलिंग। Now, what is cluster sampling? जैसा आपका नाम, बिल्कुल वही काम। Cluster sampling also divides the population into subgroups, but each subgroup has similar characteristics of the whole population. This method is useful when population is dispersed. Dispersed का मतलब है population बिखरी हुई है, फैली हुई है। जैसे मान लीजिए आपने एक कंपनी खोली, उस कंपनी के आपने 10-12 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया फैला दिए। अब आप इतने सारी ब्रांचेस में जाके उनकी पॉपुलेशन पे काम नहीं कर सकते, तो आपने क्या किया, जो आपके हेड ऑफिस के आसपास की 2-3 ब्रांच है, उनके सारे एम्प्लॉयज को आपने बुला लिया और बाकी के ब्रांचेस से 10-10 एम्प्लॉयज को आपने हेड ऑफिस में बुला लिया। तो इस तरह से आपके पास एक सैंपल तैयार हुआ जिसे हम कहेंगे क्लस्टर सैंपलिंग। शायद आपको कुछ समझ आया हो। आई होप आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। चलिए अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के बारे में बात करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग रैंडम नहीं होती। The selection of members from the population is non-random, and each member has not equal chance of being selected. This type of sampling is easier and cheaper to access. क्यों? अभी बताऊंगी। You cannot use it to make valid statistical inferences about the population. Obviously, जो चीज random नहीं है, तो वहां पे valid statistical inferences होना जरूरी भी नहीं है। There are mainly 4 types of non-probability sampling, which are convenience sampling, voluntary response sampling, judgment sampling, and snowball sampling. क्या है? आइए समझते हैं। First is convenience sampling. In convenience sampling, the members are selected which are most convenient for researchers. That is, members which are easily accessible to the searcher. कैसे? देखिए, to the researcher. Basically, मान लीजिए मुझे कोई रिसर्च करनी है। अब इंस्टेंट की मैं रिसर्च करना चाह रही हूँ और मुझे सारा काम खुद करना पड़े, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहूंगी कि बेटा आप लोग एक क्वेश्चनर बनाइए और उस क्वेश्चनर को आप अपने नोन जानकारों से फर्दर आगे फ्रेंड्स से उसको फिल करवा के आप मुझे रिसर्च का रिजल्ट दीजिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बच्चों को क्वेश्चनर दे दिया और अपना काम करवा लिया। इसे कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सेकंड, वॉलेंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग। अब यहाँ मैंने थोड़ा सा उल्टा किया। मैंने क्या किया,
यहाँ पर बच्चों को मैंने कोई एक रिसर्च करने के लिए नहीं दी, बल्कि मैंने हर क्लास में जाकर, जहां जहां मैं पढ़ाती हूँ, मैंने वॉलंटियर्स मांगे। मैंने बच्चों से कहा कि जो भी बच्चा मुझे इस रिसर्च में या इस सर्वे में हेल्प करना चाहता है, प्लीज वॉलंटियर। माय स्टूडेंट्स केम एंड दे वॉलंटियर्ड देमसेल्फ, और उसके बाद मैंने उनकी हेल्प से काम लिया। सो इट इज सिमिलर टू कन्वीनियंस सैम्पलिंग. In this sampling method, people who are themselves ready to conduct the survey collect the sample data. Next, judgment sampling. आपने इंडियन आइडल का नाम सुना है, और इंडियन आइडल जैसे और भी बहुत से रियलिटी शोज हैं जहां पे सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु पार्टिसिपेट, right? And few participants are selected by some judges or some experts among thousands of applicants. So यहाँ पे judgment होता है, उसके basis पे selection होती है. So this type of sampling is based on opinion of an expert, right? It is also called purposive sampling. However, the quality of the sampling results depends on the judgment of the person selecting the sample. यहाँ पे सारा का सारा जो रिजल्ट है वो एक्सपर्ट्स के जजमेंट, उनके ओपिनियंस पे डिपेंड कर रहा है, राइट? नेक्स्ट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग. स्नोबॉल में क्या होता है? स्नोबॉल बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे वो रोल करती चली जाती है, बस ऐसा ही कुछ स्नोबॉल सैम्पलिंग में होता है. मान लीजिए कि आपको कोई रिसर्च करनी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कोई दो, या रिसर्च की जगह ऐसा करते हैं कि मान लो मुझे एक रोबोटिक्स का प्रोजेक्ट बनवाना है, तो मैं क्या करती हूँ, एक बच्चे के पास जाती हूँ और मैं उससे कहती हूँ, बेटा आपको रोबोटिक्स आती है? बच्चा बोलता है यस. व्हाट विल आई डू? मैं उसको कहूंगी कि आप एक काम कीजिए, आप अपनी एक टीम बनाइए जिन्हें रोबोटिक्स आती है, और मुझे ऐसे 15-20 स्टूडेंट्स चाहिए. तो अब बच्चा क्या करेगा? बच्चा अपनी एक टीम बनाएगा, अपने 4 फ्रेंड से बात करेगा, और ये कहेगा कि अच्छा वी नीड अ टीम ऑफ 20 स्टूडेंट्स, तो आई नो यू 4, you get your 4 friends or more friends, so that we will have a team of 20. So this is how it is rolling actually. एक के बाद एक वो अपने आप अपनी टीम बना रहे हैं. मेरे जिसे मैंने अलॉट किया, उसने अपने बच्चे सिलेक्ट किए, अपने फ्रेंड्स को लाया वो जिन्हें रोबोटिक्स आता था, और उसके बाद वो बच्चे अपने फ्रेंड्स को लेकर आए जिन्हें रोबोटिक्स की नॉलेज थी. सो इन दिस सैम्पलिंग मेथड वी फर्स्ट सिलेक्ट सम पर्सन्स, then with the help of selected persons we select some more people, and this process continues to collect the sample. It is same as snowball increases in size as it rolls down. I hope I'm clear, right? I hope the concepts of this video are clear to you. In the next video, we will be discussing about parameter statistics and a lot more related to inferential statistics. Please do like and share the video with more students who have doubts related to inferential statistics. And don't forget to subscribe Essential Maths Academy. Thank you.